Why is LinkedIn important today? So I'll give you a very interesting stat. Monthly active users of Instagram are 2 billion. Facebook are 3 billion across the globe. In India, the stat for LinkedIn is much lesser. The number one country that uses LinkedIn is USA, 400 million active users monthly, 200 million active users in India. Now, what does this tell you? That people like more drama versus work. That's why more people are there on Instagram. LinkedIn is much lesser. USA is ahead of us in LinkedIn by double. And we are 1 billion higher in monthly active users on Instagram versus US. So what I'm trying to explain to you is that people just kind of want to do something. If you really want to do a job, there's no power in this universe that can reject you. If you're on LinkedIn. If you're on LinkedIn, if you search with the right filter, part-time, full-time, hybrid, location, job description or job title, what can stop you? And I am a very firm believer of building in public. If you're building this podcast, build it in public. Talk to people about how difficult it gets at times to get a guest. What are the 3 things that a new creator should do on LinkedIn? If I'm posting content both on LinkedIn and Instagram, how do I present my niche on Instagram which is different from LinkedIn? First of all, who is Tarun Makhija? So, when people ask my name, I tell them my name is Tarun Speaks. The only reason is I feel that people have a bias when they hear your name and your surname. They're like, oh, you're this, you're that, you're this, you're that, right? How does that matter? Because unfortunately, everywhere you go in the world, there is a bias. Oh, you're from there. Oh, you might be doing this. There's a very beautiful lane in Indore, when you pass that lane, opposite the zoo, here there is Hanuman temple. Here there is a very small masjid. I do this and I do this, both, when I'm crossing. Always. Because I feel God is only one and religion is only one. Humanity. Okay? So, who is Tarun Makhija? There is nothing like Tarun Makhija. That's something that my parents gave me. I changed my name to Tarun Speaks. Not on paper. Yeah. Not on paper, but from my own personal self. brand kind of thing. Yeah. Not even personal brand. So, when that day the other guy was at the event wanting to save my number, I said, Tarun Speaks. Your surname is Speaks. I said, yes, Tarun is speaking. So, Tarun Speaks. Tarun Speaks is the surname. That's the name. There's no surname. If I have to give it to you in a line, I would say a curious, kind human who is a teacher at heart. That's how I would like to describe myself. And when it comes to the profession that you are in, if someone wants to know all the things that you do, so what would you tell them? So usually I do this, I tell them that we run a company called Tarun Speaks, which is into TCS. Why the abbreviation TCS? Because I got a job in 2015 in TCS as a software engineer trainee and then executive, which I never took. Okay. So I got TCS back in my life because Tarun Speaks does T for training corporates, C for consulting brands and individuals on advertising and personal branding, and S for public speaking or speaking at interviews like we're having one. That's what we do in a nutshell. And initially, it was me who was doing this. Now we've developed another entity wherein we have about 300 odd trainers onboarded with us. So we can teach you anything from drama to finance to marketing. You tell us what you want to learn. You want to fly a drone? We have a drone workshop. You want to do art? We have an art workshop. Because every corporate, every individual likes different kind of stimulations, right? So if you're getting happiness by watching a movie, we'll host a movie night for you. So the logic was that if I'm doing something, why not replicate with more people? And we have a flagship course called Roadmap to Digital Marketing by Tarun Speaks. We are now doing 11th batch. It's that Kickstarter that anybody would like to have in their career as an entrepreneur, student, or a working professional for digital marketing. And more so than ever, our mission and vision is very clear. Our mission is to educate, elevate, empower 1 million individuals by December 1st, 2029. So far, we've been able to empower 26,000 odd individuals who are as young as 14 to as old as 60. And our big vision is to help people, 1 billion in total, make money by doing what they love. Okay. So that's how I would like to describe. So this number includes everything that you said. So be it drone, be it drama, be it anything.
or is it just No. digital marketing? Could be anything, because I feel everybody has some talent. If you've seen that graph of Ikigai, right? What the world wants, what can you make money out of, and what do you enjoy doing, and that intersection is the place where you want to be, of that pie chart. Which most people are not able to be. Even if they are able to find that, the insecurity, right? Hmm. I am doing a job, or I'm doing a business, or I'm doing a freelancing thing. How do I leave my regular income and focus on my Ikigai, or my calling, or my passion, or my niche? The only answer is if you are okay to give in long hours, if you're okay to make a little less initially or make a little more initially, could be either ways. Most cases it is less only. Hmm. And then एक दिन वो फटेगा, like एक दिन आपको अरे ये क्या हुआ, ये बेल कर्व एकदम से ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज वो एक दिन के लिए आपको बहुत दिन डालने पड़ेंगे. Usain Bolt. Right? You have to keep practicing, you have to keep Yeah. putting the hard work, right? So that includes anybody and everybody, because not everybody's passion could be digital marketing. So even in the course that we were doing together, the SMCC course, I never told you all to focus on digital marketing. It was a method of WWHW: who, what, how, and why. Hmm. Who can you help? What can you help with? How will you do this? Which platform will you choose? And why do you want to do this? If your why is not strong, go watch this video, which is Start with Why by Simon Sinek on YouTube. It will teach you how why is the most important out of the WWHW method of finding your niche. So in a nutshell, it is helping you understand what you love and how can you make money out of it. Because even if you know that you love writing, how will you make money out of it is what you were not aware of. We'll try to make you aware of that. Okay. So Gen Zs, Gen Alpha, these are the generations who are born with all these technological advancements that we see today, right? Okay. But every day or every passing month or a year, these advancements are running at a very fast pace. Agreed. It is very hard even for them to cope up with these advancements, to make sure that they know everything or they are aware of what is happening, what changes are happening. So what do you do in your own research to understand these things, and how do you try to make them understand and help them understand the execution process? Understood. So see, one thing you have to understand is either you can live with advancements or be that ignorant grandparent who's like, अरे ये सब Grumpy uncle types. या कि ये सब तो कुछ नहीं होता, हमारे ज़माने में हम पेपर पढ़ते थे तो तुम भी पेपर ही पढ़ो. You like reading paper, I like reading newspaper too. Somebody else might be just wanting to consume content on Instagram, take the news from there. Whether it's the algorithm, whether it's a new band called the Whoop band, which is going to track your sleep cycle, fitness cycle, or Oura ring or whatever, or whether it's a new tool of AI. First thing that we do, if we have to ever teach it to anybody in this planet, if you have to ever teach anybody on this planet, the first thing that we do is we go deep dive in understanding the tool ourselves. Can we use it? Are we able to comprehend ourselves? If we are not, then we get another trainer who can. If Pranav has done this for 2 years, we'll get him on board. That's the logic why only Tarun should not be teaching in this entire process of teaching, training, empowering people. And I feel alone you can do only so little, together you can do so much, right? Second, learn to read the news, which is more oriented from techcrunch.com. Second, socialmediatoday.com. Third, there's a website which I used to follow earlier, 360 gadgets, something like .com. So you will be able to understand कि क्या नया हो रहा है. ये सब भी नहीं करना, कोई बात नहीं. Let's go to Money Control or Economic Times. You'll always see new things happening in business. Yesterday, I saw a video of a Mercedes Vision V. Opens from your Face ID. Looks like a 5-star hotel from inside. There's a 60-inch TV that comes up. And you can, on the chair that you're sitting, 2 chairs, center mein there's a chess board also, you can shut it also and just keep a drink or maybe just a coffee. And this chair has a feature of zero gravity. So it just is floating like... Float, yeah.
In the car, you'll not feel even a speed bump. And the similar kind of sitting arrangement is done for the driver also. This is this human being called LaRue. She was reviewing this entire vehicle. It had zero glass. The covering before the light was not there. It was just direct fiber or crystals. Crazy. So either Pranav can be like, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, टाइम पास है, इंडिया के लिए तो बनी नहीं है कार. Example. You can be either ignorant to technology, whether it's an automobile or in a tool or a cup that can keep the liquid hot or cold, or you can be moving alongside that. That's why people are saying this one beautiful statement, right? AI will not take your job. People who know AI and how to give the right prompts will definitely take your job. And if you want to learn more about AI, I would definitely ask you to follow Ansh Mehra, very, very amazing guy on this one topic. So either whatever is happening in life, whether it's technology for Gen Z or Gen Alpha, or whether it's a problem you're facing, or whether it's overthinking, you decide whether you want to stick at the same place or move ahead and just go towards the future, or okay, no, I will not order from quick commerce. I'm gonna just go back to a DMart or wherever and buy myself. You decide. And one last advice that I have for everybody who's consuming a lot of content is don't just consume. And I told you the exact same thing. That human beings are born to create. We are creative geniuses. We made fire to everything around you. Literally, this camera, this light, glass, सब हमने बनाया है. फिर हमने उसके लिए मशीन बना दी जो उसको बना रही है, हमारा काम आसान कर रही है. मशीन का काम कभी भी काम हटाना नहीं था, काम आसान बनाना था. Right? Yeah. So you have to always understand, you have to always create more than you consume. Then you'll always remain creative. Otherwise, it's very easy to just give a prompt, take ideas, or just keep watching 10 hours of Netflix. Nothing, right? Just keep watching. And lastly, that one more point that you were saying earlier, which was about parents. I feel you have to be a teacher for them now because they have done that all their lives for you. I have taught my dad how to use Uber and Ola about 15 times. Till date, I book it for him. That's another confidence to still book it. Yeah. Can I do the business that he does of textiles like him? No. No. He is 40 years into it. He's here only or Indore? He's in Indore. Okay. So, 40 years he's into textiles. Can I do the same thing? Can I sell kapda like he does? No. So it's now our time to become the teachers for our parents. Because if not now, then when? If technology is improving, I showed them the other day that पापा देखो ये हमारा सैंपल है एक कपड़े का, तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया बहुत प्रॉपरली लिख के कि एक काम करो, इमेजिन करो कि तुम एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, तुमको मैं एक कपड़ा दे रहा हूँ जो फैब्रिक है कॉटन, मुझे क्या बनाना है इसका, एक वुमेन गारमेंट बनाना है, इंडियन स्टाइल सूट बनाना है, उसमें दुपट्टा होना चाहिए, उसमें ये स्टाइल का नेक होना चाहिए, ये स्टाइल का बॉटम होना चाहिए, ये स्टाइल की शूज़ होनी चाहिए, ओकेजन क्या है, वेडिंग सीजन वेयर है, वेडिंग या फिर ओकेजन वेयर है, पूरा प्रॉम्प्ट दिया, 2 मिनट रुके, इमेज जनरेट, पापा ने बोला बढ़िया है यार ये तो. क्योंकि वो जो क्लाइंट को हम सैंपल दिखा रहे हैं उसको इमेजिन शायद नहीं हो पा रहा है कि कैसा दिखेगा ये बन के गारमेंट, तो हमने दिखा दिया उसको. So I teach him ChatGPT also. He may or may not be using it, but I try to teach him. Yeah. Because if I don't try, then if he would have not tried, I would have not learned how to cycle ever in my life. He would be like, अरे तेरे से नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दे. I don't think any parent will tell you कि तेरे से नहीं हो पा रहा है, यार बेटा नहीं मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा. 1 in a million पेरेंट होगा जो बोल रहा होगा अपने बच्चे को तेरे से नहीं हो पाएगा. शायद वो उसेन बोल्ट का पेरेंट होगा क्योंकि उसको चाहिए कि वो और अच्छा करे. उसमें भी एक छुपी हुई होगी उनकी सोच. So you move ahead with technology, you teach, you create more than you consume. Teach to the parents. So okay, now I want to focus on the social media aspect more. Why is LinkedIn important today? So I'll give you a very interesting stat. MAU, monthly active users of Instagram are 2 billion, Facebook are 3 billion across the globe. In India, the stat for LinkedIn is much lesser. The number one country that uses LinkedIn is USA, 400 million active users monthly, 200 million active users in India. These stats are as recent as March 2025.
Statistica.com, sproutsocial.com, you can put the reference. What does this tell you? The people like more drama versus work. People like more drama. Versus work. Yeah. That's why more people are there on Instagram, right? Or Facebook has 3 billion active users monthly, 2 billion active users on Instagram. LinkedIn has much lesser. USA is ahead of us in LinkedIn by double. And we are 1 billion higher in monthly active users on Instagram versus USA. So what I'm trying to explain to you is that people just kind of want to do something. If you really want to do a job, there's no power in this universe that can reject you. If you're on LinkedIn. If you're on LinkedIn, if you search with the right filter, part-time, full-time, hybrid, location, job description or job title, what can stop you? You yourself, because you don't want to do that. You want to go back to Instagram and watch a reel. You want to go back to YouTube and watch this podcast. You should. So the logic is that there's one aspect I told you, job seeker. Second is for somebody who's recruiting people. If Pranav already has a great personal brand of him talking about video editing or content, I can hire him directly from there. वो 3 साल से बात कर रहा है वीडियो एडिटिंग की. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक हमारी स्टूडेंट थी रिद्धि. मैंने उसको बोला यार काम करो रिद्धि, आप कंटेंट राइटिंग करते हो ना, आप हर उस इंसान के पोस्ट पे कमेंट करोगे जिसके साथ आपको काम करना है. ठीक है. प्रॉपर नहीं, अच्छा पढ़ के कमेंट, रैंडम कमेंट नहीं, ग्रेट पोस्ट, इंप्रेसिव नहीं, प्रॉपर पढ़ के. Pranav, you will not believe, in 6 months she had an offer on her table with just 2 years of experience to become a full-time social media executive or manager, or to become that plus have equity in a digital marketing company. She's like, sir, I don't know what to do. I have equity now. What to do? Just because she was commenting right. Yeah. And there was one other person who wanted to work with us. She kept commenting on my post for 6 months. And if you tell me who do you imagine first as a LinkedIn content writer, I can only think of Mega. Nobody else. If you really want to do something in life, if you're a professional, be there on LinkedIn. Until unless you reach a level of a Kunal Shah where you can write 2 lines and it'll just gonna go berserk on the internet, right? And I am a very firm believer of building in public. If you're building this podcast, build it in public. Talk to people about how difficult it gets at times to get a guest. Building in public, what do you mean by that? What do I mean by that is talk to people, show them on LinkedIn कि भाई मैं ऐसे करता हूँ पॉडकास्ट की जर्नी, पहले मैं क्या करता हूँ, ड्यूरिंग पॉडकास्ट में क्या करता हूँ, बाद में मैं कैसे सोचता हूँ. बिकॉज कोई अगर आपसे इंस्पायर हो जाएगा वो पॉडकास्ट चालू कर लेगा, या फिर कोई कंपनी पॉडकास्ट प्रोडक्शन मार्केटर ढूंढ रही होगी जो आपको ढूंढ लेगी. बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली पॉडकास्ट की बातें ही करते हो. आपके दिमाग में पॉडकास्ट पे कौन आता है सबसे पहले जो आपको पॉडकास्ट पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है चलचित्र टॉक्स. स्टोरी टेलिंग कौन पढ़ाता है? जाकिर खान भी पढ़ाता है. बट सबसे पहले आपके दिमाग में वो नहीं आएगा शायद. उसकी प्रेमिस स्टैंड अप कॉमेडियन है. कमिंग बैक टू लिंक्डइन, हायरिंग, जॉब सीकिंग, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड. कितने लोग लिंक्डइन पे ही जी रहे हैं. उसकी वजह से कोलैबोरेशन मिल रहे हैं, उसकी वजह से काम मिल रहा है, सब कुछ उसकी वजह से मिल रहा है क्योंकि लिखते बहुत अच्छा है वो लोग और लॉजिकल चीज़ें लिखते हैं. तो जब आप लॉजिकल चीज़ें कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, अपनी पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, आपने क्या किया, बस आपने एक नीश ढूंढ ली WWHW से, ठीक है, फिर उसको तोड़ के आपने माइक्रो नीश बना लिया. आपकी नीश है पॉडकास्टिंग. एग्जाम्पल, पॉडकास्टिंग अबाउट योर सब्जेक्ट विच इज लेट्स से पीपल, ह्यूमंस, ड्रामा, मार्केटिंग, मिक्स ऑफ ऑल. एंड यू डू दिस एवरी डे. You talk about this, current affairs, tagging people who are with you on a podcast so that you get more traction because if I will like this post, my followers will see it and vice versa. It's a ripple effect. 3, you talk about your struggles because people are into filled. stories. Yes. People love stories. People are born with stories. People hate suspense. So build suspense and give stories. And more than anything else, the more consistent you are on that platform, the better it is because I'll tell you a very interesting fact. Out of the total number of people who are active on LinkedIn, 1% people, how many? 1%. Post daily. Only 1% people post daily. That Imagine the amount, 200,000, 2 million. Imagine the amount of people and the amount of opportunity that you have to reach. But that 1% post generates 1 billion impressions daily. Yeah. So the amount of opportunity that you have on a platform like LinkedIn is big. To get a job, to hire people, using the Sales Navigator. If you're somebody who's into sales, use Sales Navigator. Great tool to generate leads, speak to them, build a CRM around them, manage them. Use the hiring tools. Use the LinkedIn ads for maybe reaching the right people. Universities are advertising on LinkedIn because they want you to come and buy, or a Dell, or an HP, or an Apple also. Buy the Mac, now better battery, etc.
B2B businesses should also be there on LinkedIn because it's like the best thing for them. Comedians should also be there on LinkedIn. They could get a stand-up gig from a corporate. Artists should be there. Musicians should be there. So instead of focusing just on Instagram or Facebook by creating your own content, you should also focus on LinkedIn to make sure that you are getting multiple other avenues No. where you're Focus on where your audience is present and what is your end goal. अगर आपका end goal job है तो Instagram पे मिल रही है job, पर LinkedIn पे थोड़ी बेटर तरीके से मिल रही है. सर आप नौकरी पे भी जाओगे, Indeed.com पे जाओगे, Monster पे जाओगे, इंटर्नशाला पे जाओगे, इंटर्न थ्योरी पे जाओगे. आपको वहां पर है ना जहाँ पे आपका फोकस और गोल मीट हो रहा है. आपका गोल नहीं मीट हो रहा है LinkedIn से. LinkedIन पे बैठ के मैं 1 घंटे की पॉडकास्ट सुन सकता हूँ क्या? 2 मिनट का वीडियो? हाँ. 3 मिनट का वीडियो? हाँ. 60 सेकंड का वीडियो? हाँ. तो आप उसके लिए एडिट्स डाल के वहाँ पे डालते हो. अगर नहीं डालते हो तो डालो, बिकॉज अगर मेरे पास फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, भले मेरे फॉलोअर वहाँ पे 500 हो, 5 लाख हो, मैं क्यों उनको वेस्ट करूँ? सो आप उन प्लेटफॉर्म्स को चूज करो जहाँ पर आपका ऑडियंस एक्चुअली में प्रेजेंट है. नंबर 1. अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्डइन इंस्टाग्राम है चलेगा, लिंक्डइन इंस्टाग्राम ट्विटर है चलेगा. अगर वो एक न्यूज़लेटर बिल्ड करना है, आपको एक न्यूज़लेटर बिल्ड करना है जहाँ पे लोग अपना ईमेल आईडी डाल के जा रहे हैं और इनिशियली आपको पे नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में आप सबस्टैक, स्क्रॉल स्टैक के थ्रू पैसे कमा सकते हो मंथली सब्सक्रिप्शन डाल के कि आपको अगर मेरे बातें सुनना पसंद है, पढ़ना पसंद है, सब्सक्राइब टू माई न्यूज़लेटर टू सपोर्ट द न्यूज़लेटर. आप डिसाइड करो. देखो कंटेंट बहुत इजी है, आप डिसाइड करो. आपको लिखना अच्छा लगता है या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऑडियो अच्छा लगता है या फिर वीडियो अच्छा लगता है. हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग जगह होता है, हर एक की वैल्यू अलग अलग जगह पे होती है. तो अगर आपको सिर्फ लिखना पसंद है तो अब आप AI को ट्रेन भी कर सकते हो हेजन के थ्रू कि यार मेरा वीडियो बना दे यार, अपनी आवाज़ दे के 15 मिनट का डेमो ही वीडियो रिकॉर्ड कर लो. तो तरीके बहुत है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपका एंड गोल क्या है. नंबर 1, आपको यहाँ से जाना है, बस जाना है. जा पाओगे आप? कहाँ जाना है? एग्जैक्टली. आप एक पॉडकास्ट बना रहे हो, कहाँ लेके जाना है आपको? गोल क्या है? गोल क्या है? एंड गोल क्या है? डू यू वांट टू मेक 1 crore rupees out of this podcast in the next 1 month, next 12 months, next 3 years? Do you want to make it 100 crore? Can you make 100 crore? होता है क्या ऐसा? Mr. Beast is the youngest billionaire because of content. So होता है ऐसा. Just to reassure you that content creation is not a joke. Okay? 398 million subscribers he has right now On YouTube. is it close to half the world following him? It is what it is. You're right. It has to be 4 billion according to me. We'll check the stats later. Okay. But I'm trying to tell you that have that one end goal of whichever platform you're on. That one end goal is very important. Second, what you talk about is equally important. Because your personal brand is the way you sit, the way you eat, where you show up, how you show up, whatever you wear, whatever you do. Everything is a premise that you're setting. If a Zuckerberg was always wearing a grey t-shirt, you were like, अरे यार इंसान के पास premise बन गया कि टाइम ही नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसको लेना ही नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, इसलिए ये सेम टी-शर्ट पहनता है. So what are you talking is also important. And third, what is equally important is gathering the right audience. अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो अराउंड स्पेस, उसको क्या एक 6, 10, 8 साल का बच्चा सुन रहा है जिसको क्यूरोसिटी है स्पेस के बारे में, या फिर एक सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी जो बहुत क्यूरियस था स्पेस के बारे में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. क्या वहाँ तक पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा तो पहुँचाओ वहाँ पर. कैसे पहुँचा सकते हो? बहुत तरीके हैं. आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसमें स्पेस की बातें हो रही, वहाँ पर अपनी पॉडकास्ट लिंक डाल दो. व्हाट्सएप कम्युनिटीज बना दो स्पेस के अराउंड. NASA.io पे कम्युनिटी बना दो. इंस्टाग्राम चैनल बना दो, एक सिर्फ स्पेस की बातें करो उस पर. कभी कभी पॉडकास्ट प्लग इन कर दो. आज आपने कॉन्स्टेलेशन देखा, आज मिल्की वे में ऐसा हुआ, क्योंकि है लोग क्यूरियस. हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी. एक ग्लास कैसे बनता है मुझे जानना है, मैं जाऊँगा यूट्यूब पे सर्च करूँगा, हाउ डज ग्लास गेट मेड. मेल्ट करते हैं, सॉ करते हैं, एक मोल्ड में डालते हैं, बन जाता है. मैंने देखा है मैग्नम आइसक्रीम कैसे बनती है, मुझे देखना था, मुझे जानना था मैग्नम आइसक्रीम कैसे बनती है, मैं क्यूरियस था. So the day you are not curious, that day you will technically be dead from inside. Is that your biggest fear as well? No, I can never be not curious. So I mean, what is your biggest fear then? Biggest fear? Nothing to lose. No fear. No fear. Okay. अब किसी सबका होता है यार कुछ ना कुछ तो. यार अगर मेरा बर्थडे तो रोज मनाता हूँ मैं, आँख खुली मेरा बर्थडे है ना, एक दिन और मिला मेरे को, तो क्या डरना फिर. भगवान ने जब एक और दिन दे ही दिया तो जी लो ना पूरा. फिर आई डोंट वेट टू वेयर माई बेस्ट क्लोथ्स, माई फेवरेट परफ्यूम,
or eat my favorite dish anymore. Not saying I'm going all full blown road shopping कर रहा हूँ, नहीं. I'm just explaining to you, I don't wait for occasions anymore. Every day is an occasion ना. प्रणव की आंखें खुली occasion ही है ना उसके लिए, तो जिंदा है वो भाई, उससे बड़ा occasion क्या हो सकता है? Half the world is just sulking and not celebrating life. प्रणव जिंदा है, उसको भगवान ने 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पाँव, सारी उंगलियां दी हैं, और क्या चाहिए उसको? आधे से ज्यादा दुनिया वो देखती है जो उनके पास नहीं होता है. फियर ऑफ हाइट्स बोल सकते हो आप, पर मुझे नहीं है वो फियर भी हाइट्स का. आई हैव गॉन टू बुर्ज खलीफा, आई डिडंट फील फियरफुल. If you throw me without a parachute, logical fear will be there, right? I'm not Tom Cruise, climbing buildings. So I'll just plug in this beautiful poem that you can give the courtesy to Hrithik Roshan and quote him. I'm just quoting him. He says, डर से मत डर. डर तुझे ये सिखाएगा कि 6 उंगली वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा. डर तुझे ये सिखाएगा कि पीठ टूटने के बाद कभी तू नाच नहीं पाएगा. डर तुझे ये सिखाएगा कि डॉक्टर ने बोल दिया तू नहीं कर पाएगा तो तू नहीं कर पाएगा. तो डर से मत डर, डर से आगे बढ़. क्योंकि डर सिर्फ एक ख्याल होता है हमारे मन का. Everything was once just a thought, like this podcast now is reality. Right now I'm processing thoughts and giving to you from my speech constantly. So don't die in your thoughts, don't fear in your thoughts, because people fear their thoughts more than anything else. The fear is nothing but it's just a thought, ना. अब मुझे डर लग रहा है कि कोई आके मेरे ऊपर कॉफी फेंक देगा, तो ये तो स्टूपिड वाला डर हुआ, तो इमेजिनेटिव हो गया. लॉजिकल डर हो गया कि यार कोई एक डर है मेरे पास. The only fear I have in life, only to see a day without my parents. I don't know how will I be, because I don't know, like मतलब कैसे करते हैं उनके बिना काम. किसको फ़ोन करो आप जब गाड़ी चला रहे हो और आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, ब्लूटूथ पे आप बात कर रहे हो, तो और मैं अपने पापा में से रोज़ बात करता हूँ, कुछ भी चल रहा हो, रोज़. क्या कर रहे हो? बैठे हैं. तू क्या कर रहा है? बस बैठे हैं. आई कीप टॉकिंग अबाउट माई वर्क, क्या मैं कर रहा हूँ. वो मेरे से पूछते भी है, मैं बताता भी हूँ क्या खाया, क्या कर रहे हो. तो दैट्स वन फियर दैट आई कैन टेल यू इज द ओनली फियर, टू सी अ डे विदाउट माई पेरेंट्स और माई पार्टनर. आई डोंट नो, लाइक मतलब आई ऑलवेज टोल्ड गॉड, you take me before them. I don't have the heart to do a day without them. So, or just keep us alive till as long as you can is the better way to put it, because why should I take myself before them also? Just keep us alive till 500 years. I'm okay. I can do collaboration with Brian, that guy who's reverse aging, right? Yeah. Removed his plasma. And he's a crazy guy. Yeah. He Brian Johnson. He does about some 200 tablets in a day. Yeah, he's spending 16 million a year, I think. So I'm just saying that could be that one thing that I can tell you could be a fear. Otherwise, nothing else. Like no other fear as such. No other big fear that I have in my head. कि अरे हाँ यार प्रणव ये इससे डर लगता है मुझे इस चीज़. Coming back to LinkedIn, what are the okay? So there are 2 questions that I have in my mind. I'll first start with what are the 3 things that a new creator should do on LinkedIn. So they have never posted anything on LinkedIn. They have just made their new profile. What are the 3 most important things that they should focus on? Only one important thing: optimize your profile. How do they do that? The first thing that you see on LinkedIn is the photo. इतना सा दिखता है वो, इतना ही देख पाते हो आप, क्योंकि फ़ोन में देख रहे हो ना आप. बहुत कम जनता है जो इक्वली लैपटॉप पे चलाती होगी. Have a nice headshot which is clear enough. जैसे भी आप हो, टी शर्ट में आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, जो भी आपकी पर्सनालिटी है ना, फेक मत करो. ब्लेजर मत डाल के आओ अगर आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है. अनटिल आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक करो, लॉयर हो, जिसकी जॉब डिमांड कर रही है वो, ठीक है. दूसरा, कवर पे वो लिखा होना चाहिए जो आप करते हो, एक लाइन में क्या करते हो, किसके लिए करते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो. आई क्रिएट कंटेंट फॉर हू, वो डालना वहाँ पर. एंड आई मेक यू स्मार्टर ऑन दिस, whatever could be the premise. So what you do and how are you helping the other person? जो पढ़ रहा है वो, क्यों फॉलो करूँ मैं प्रणव को, ठीक है. उसके बाद आता है आपका हेडलाइन. ऐड कीवर्ड्स, द राइट वंस, राइट एज स्पेसिफिकली एज यू कैन. फाउंडर तरुण स्पीक्स, okay, / corporate trainer
/digital marketing consultant /public speaker /mission empower 1 million individuals by December 1st 2029. एंड सबसे पहले मैंने लिखा है BW 30 under 30 because I won that award in 2023. ट्रस्ट बिल्ड हो गया. सेम चीज, नया क्रिएटर है नहीं उसका ऐसा अवार्ड, कुछ नहीं है. क्या वो लिखता है वहां पर 3 लाइन में, वो मैटर करता है. बिकॉज इस कीवर्ड के थ्रू आप सर्च हो रहे हो ना, जब मैं लिंक्डइन में आपको सर्च कर रहा हूँ, राइट. सो वो आपने कर लिया. उसके बाद आप अगली चीज पे आ जाओ. पहले कुछ ऑडियंस गैदर तो करो. किसके लिए डालोगे पोस्ट? रेलेवेंट कम से कम 100-200 लोगों से कनेक्ट करो. उसमें शायद 50 से 70% लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे. फिर पहला पोस्ट डालो. और उसके नीचे आता है आपका अबाउट सेक्शन. डिस्क्राइब हु यू आर, व्हाट डू यू डू, व्हाई शुड आई कनेक्ट विद यू, एंड लिटिल बिट ऑफ ए पर्सनल लाइफ. 1 लाइन. इफ आई एम नॉट वर्किंग, यू कैन फाइंड मी प्लेइंग अ स्पोर्ट, वर्किंग आउट, और सिंपली एंजॉइंग फूड एंड ट्रैवलिंग. दैट्स मी एज अ पर्सन. और कॉफी. अबाउट भी हो गया. उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, फीचर सेक्शन आ गया आपका. तो आप अपना एक लैंडिंग पेज है आपका, जिसके बारे में आप प्रोफेशनली सब कुछ जान लोगे. तरुण मखीजा के ऊपर सब कुछ, उसको आपने पूरा एंड टू एंड नीचे तक ऑप्टिमाइज कर लिया. कोर्सेज क्या किए, लैंग्वेजेस क्या सीखी हैं आपने, सब कुछ. जब आपने ये कर लिया ना, तो आपने अपना पोस्टर तैयार कर लिया मूवी का. अब मूवी देखने जो भी आएगा वो जज किस पे करता है आपको? जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, गोला, नाम और प्रोफाइल पिक्चर, नेम एंड हेडलाइन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट. और उसके नीचे आती है 3 लाइन. वो 3 लाइन में क्या लिखा होता है आपने? एड अ नोट सेक्शन. हाय प्रणव, आई एम तरुण. और हाय प्रणव, बिकॉज ऑलरेडी नो आई एम तरुण, बिकॉज मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ. हाय प्रणव, आई सी दैट यू आर बिल्डिंग अ पॉडकास्ट. वी कैन स्केल इट बाय 10 times by 1, 2, 3 methods. Let's connect. Here's the link that you can book a call. अब प्रणव इज लाइक, यार मेरा कोई पॉडकास्ट 10 टाइम इंक्रीज करना, तो मेरे को उससे कनेक्शन बनाना ही बनाना है. आप मुझे बिजनेस दो नहीं दो, आप एक्सेप्ट तो जरूरी करने वाले हो उसको, राइट. वॉट यू राइट बिलो दैट ऑल्सो इज इक्वली इंपॉर्टेंट. जब आप एड अ नोट करके भेज रहे हो, क्योंकि मैं आपको उस पर ही जज कर रहा हूँ. सिर्फ फोटो, हेडलाइन और नाम. नाम पे क्या जज करूंगा, पर कर लेते हैं लोग. और एड अ नोट. वो नोट में आपने क्या लिखा मुझे जब आप कनेक्शन भेज रहे थे मुझे? क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट कनेक्शन है या फिर नहीं? आधी जनता आके वहाँ पे सिर्फ सेल्स कर रही होती है. हाय तरुण, वी आर फ्रॉम दिस कंपनी, वी वुड लाइक टू सेल यू व्हाट्सएप एसएमएस मार्केटिंग सर्विसेज. अरे भाई, मेरा बिजनेस क्या है, मैंने क्या किया, आपने मुझसे पूछा? पहले आप कनेक्शन बनाओ, फिर आप मेरे से बातें करो. कैसे कनेक्शन बनाओगे? सबसे पहले आके ढूंढो कि क्या लिखा है बंदे ने, क्या बातें करता है वो. एक अच्छी लाइन लिखो, फिर आप मेरे से कुछ बातें करो. फिर अपना अप्रोच डालो ना यार, कि प्रणव यार देखो यार, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी और कंसल्टिंग कंपनी चलाता हूँ. आपकी टीम को कभी कोई ट्रेनिंग देनी हो तो बताना, अपन कुछ साथ में कर लेंगे. डायरेक्टली आके प्रणव ये खरीद लो यार. एक लिंक्डइन का बंदा अगर बाहर बन के आपसे बात करे, प्रणव ये खरीद ले यार. अरे खरीद ले भाई, अरे खरीद ले. अरे क्यों खरीदूं मैं? प्रणव, आई सी दैट यू लाइक ड्रिंकिंग कॉफी. नाइस, इवन आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी. या तरुण, इवन आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी. अब क्या कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, अपन बातें कर रहे हैं चैट में. What coffee do you like? Is it roasted or is it instant coffee? Because instant coffee is not coffee actually. Do you believe so? So, Pranav, I have something for you. I run this company called ABC Mugs. I have this special mug for you with a initial of TM, which is mine. It's gifted to me by, right? And it is going to cost me a couple of $1,000. As a company, it's going to cost me 1,000. I'm going to sell it for 3,000. But for you, it's free. Because you are one of those founders which I probably want to work with, or you can probably give me an order next Diwali of 50 mugs or something else, or I just want to give you because I really like your content. खत्म. Without expectation जब आप देते हो ना, तो आती है चीज़ें घूम फिर के. बिकॉज कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वाला लॉजिक है ना. तो आपने मुझे कुछ मांगा ही नहीं. आपने मेरे से, आपने मुझे बल्कि 2-3 बार हेल्प कर दिया कि प्रणव तेरा शो चला देता हूँ, तेरे को एक गिफ्ट देता हूँ, तेरी मर्चेंडाइज बना देता हूँ. आप शो चला दो, मैं शो मर्चेंडाइज में कोलैबोरेट कर लेता हूँ, फ्री में देता हूँ. सो आप क्या बातें करते हो? अगेन सेम थिंग ना. आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो डीएम में मेरे से? व्हाई शुड आई गिव यू इवन 1 minute ऑफ माय टाइम If I'm not getting anything from you. एलिवेटर पिच है ना वो लिंक्डइन पे. एलिवेटर ना 30 सेकंड में आता है नीचे, 10 से 1 पे, या फिर 100 से 1 पे. अगर आप कहीं और देश में हो तो 90 सेकंड में आ जाता है. दुबई में तो आ जाता था. तो मेरा लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि मेक दैट टाइम दैट आई एम गिविंग यू वर्थ इट.
लाइक यू सेड ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हूँ ना मैं, टेक्नोलॉजी इतनी है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, जीमेल, कॉल। तो मेरा वो टाइम, अगर मैंने प्रणव की वो बात एक बार पढ़ ली जो उसने लिखा था वहां पर ना, आई शुड बी सोल्ड एट दैट। दैट्स माई एडवाइस टू अ न्यू क्रिएटर। एंड द लास्ट एडवाइस इज persistency. Persistency when multiplied by consistency yeah. beats everything in life. Yes. I still have that with me. You asked us to write it. I have one diary. I've just kept it in that. I open it once in a while, so वो दिखता है. Imagine you are an actor. This is your line, right? Yeah. Persistency into consistency beats everything in life. Okay, I'm gonna get it framed 100%. I'll gift it to you. No. I'll just. So you get it framed for 10 people and give it to 10 people because Yeah. same message should go to every person you meet on your podcast and give it to them as a gift. Because I feel आप भले बिजनेस करते हो, कंटेंट बनाते हो, आप एक्टिंग करते हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, पेशेंट यहाँ पे है, आप डॉक्टर हो, आपका मन नहीं था ऑपरेशन करने का, उसकी जान चली जाएगी, आप आए उठ के घर से, 50-50 चांस है, आप गिव अप मार दोगे क्या? मार सकते हो क्या आप गिव अप? There's no option. मार सकते हो ना, मन ने बोल दिया, आपको क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ दो यार, बोल देंगे बाहर, नहीं हो पाया हमसे। Depends on what kind of a doctor you are. पर मारना नहीं है ना गिव अप आपको। आपने प्रणव 1000 ऑडिशन दे दिए, एड फिल्म कितने की आपने? 50। क्या रेशियो है यार? 5%। Yeah. तो आप 90% फेलियर को देख लो या फिर 5% सक्सेस को देख लो। 50 is good enough यार। परसिस्टेंट थे आप तो ही आपने वो किया ना। कितने लोग आपको पता है इस शहर में आते हैं, चले जाते हैं। कितने लोग एक्टिंग करने कोई आया था, कोई स्टार्टअप करने आया था, कोई जॉब करने आया था, कोई फ्रस्ट्रेट होकर चले गया, कोई पैसे की वजह से चले गया, कोई सक्सेस नहीं हो पाया, किसी के पापा ने मम्मी ने बोल दिया कि घर आके धंधा संभाल लो बेटा, दुकान संभाल ले यार, छोड़ दे क्या एक्टिंग कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सरफरोश से लेकर अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने कुछ सालों में। इतने टाइम तक वो सिर्फ मेहनत ही कर रहे थे, सिर्फ मेहनत, कड़ी मेहनत। शाहरुख खान को किसी ने बोला था कि बहुत बदसूरत दिखते हो, and he agrees that he is not the most handsome person. There are more handsome people. Hrithik Roshan is definitely more handsome than Shah Rukh Khan, but Shah Rukh Khan can bring that emotion because he is persistent. फौजी से लेकर आप यार पठान बन गए। बिना परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी की कोई भी इक्वेशन आप उठा लो, विराट कोहली की उठा लो, पीवी सिंधु की उठा लो, आप साइना नेहवाल की उठा लो, साइना मिर्जा की उठा लो, गुकेश की उठा लो, कौन सा इंसान है जो बिना परसिस्टेंट के बस वो पहली बार में गया, सारे दरवाजे खुलते गए उसके लिए, बस वो बन गया अमिताभ बच्चन? ऐसा होता है क्या? कितने बार दरवाजे बंद हुए थे उनके ऊपर। KBC was his second Amitabh Bachchan 2.0 that got him back on track. Yeah. And when I met him recently in November last year on the KBC shoot, I told him one thing. This is where he was. This is where I was. He comes in the end to the audience. ऐसे इतना खिसक के ना वो 1 घंटे तक पूरे ऑडियंस का फोटो खिंचाते हैं। He's 82 से 83. So I told him कि सर मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, पर सर मेरा ड्रीम ही है कि सर जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक जो आप करते हैं मुझे वही करना है। आप एक्टिंग करते हैं, मुझे ट्रेनिंग देना है, मेरा वही ड्रीम है। I want to keep continuing to train people till the day I live. And till the day I am, I will do it live. From after that, YouTube is there for you. There's a library I'm going to create. Every video that I've ever done, it's all going to be live. Learn. Because according to me, learning should never be bounded by only money. That's why in every batch we have at least one student or 2 students who are coming there at 10% of the cost of the fees. Could be anybody. इसका जरिया नहीं है. Because I feel that people when they don't pay attention also. Something you have to take from the person. So long story short, I feel अगर आप कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली पोस्ट करते जा रहे हो लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे कंटेंट बनाते जा रहे हो या इंस्टाग्राम पे बनाते जा रहे हो रील्स, तो एक दिन नहीं, धीरे धीरे आपको एक फ्लो मिल जाएगा और आप फ्लो में आके वो बेल कर्व आ जाएगा कि अब आप एक जगह पहुंच चुके हो, अभी चलते रहेगा। नहीं चल पाया तो ठीक है यार, लाइक यू सेड, आपने कनेक्शन बना लिए, नेटवर्क बना लिया, नए लोगों से मिलकर कॉन्वर्सेशंस कर ली, आप किताबें तो पढ़ रहे हो रोज आके लाइव, आपके पास तो और कोई जरिया नहीं है किताबें पढ़ने का, शायद वो किताबें पढ़ना पसंद नहीं होगा या पसंद भी होगा,
मुझे तो किताब पढ़ना इतना पसंद नहीं है, मैं ज़बरदस्ती पढ़ता हूँ किताब नॉलेज के लिए कभी कभार। तो दैट वन लाइन इज ट्रू फॉर एनी प्रोफेशन इन दिस कंट्री, वर्ल्ड, कुछ भी कह लो। यार आप विराट कोहली हो, 4 सालों का सेंचुरी नहीं मारी आपने, कैसा लग रहा होगा आपको अंदर से यार? पूरे देश का बाहर लेके चल रहे हो आप। मुझे वेंकटेश अय्यर ने फ्लाइट में बोला KKR के जो प्लेयर इंडिया के लिए भी खेले हैं कि भाई अनफॉर्चुनेटली ना लोगों का घर चल रहा है क्रिकेट पे, जिसमें क्रिकेटर की कोई गलती नहीं है। आप कुछ अच्छा काम करो ना बैठ के, और आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। अरे आपने कितना क्रिकेट खेला इंटरनेशनल लेवल पे, आप जो एडवाइस देते रहते हो टीवी पे उस बंदे को, अरे ये क्या गेंद डाल दी, अरे ये क्या बॉल डाल दी यार, ये कैसे खेल रहा है यार। आप कौन सा किस इंसान ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे से एक बॉल को 6 के पार पहुंचा है? अगर उसने किया है डोमेस्टिक में भी तो वो बोल सकता है, या रणजी में भी शायद, उसकी बात सुन लूंगा मैं। वो रैंडम इंसान जो गली क्रिकेट खेलता है वो आगे बोल रहा है अरे क्या ऐसे ही आउट हो गया। अरे भाई कौन सा इंसान जानबूझकर के आउट होता है? कौन सा इंसान जानबूझकर के नो बॉल फेंक देता है? उसने ये बात बोली थी कि जब आप इतने लोगों का बाहर अपने सर पे लेके चल रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो या फिर आप न्यूज़ देख लो या फिर न्यूज़ देखो ही मत। पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बहुत होता है न्यूज़ का, क्रिकेटर से लेकर सबकी लाइफ में। जब आपके बारे में अच्छी बातें होती है ना, जब आपके बारे में अच्छी बातें हो रही होती हैं तो सुनना पसंद होते हैं आपको। और जैसे ही किसी ने उल्टा बोल दिया, अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। सो आई फील कि आप जब भी किसी चीज़ को उठाओगे, किसी इंसान को ऐसा उठाना आप यूनिवर्स में से, वो आपको परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ही मिलेगा, तभी वो वहाँ पहुँचा जैसे वो पहुँचा है। कुछ गिने चुने फुटबॉलर्स के नेम जानते हो आप इंडियन टीम के ना, बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, क्यों? वो कैप्टन रह चुके हैं, फेमस ज़्यादा हैं, परसिस्टेंट रहे हैं। डू द सेम थिंग एवरी डे, डू द बोरिंग। द पार्ट ऑफ यू विच शोज अप इज द ओनली पार्ट यू नीड इन लाइफ। मन नहीं कर रहा है, उठो काम करो। मन कर रहा है, उठो काम करो। अवार्ड जीत गए, उठो काम करो। अवार्ड हार गए, और उठो काम करो। मूवी मिली, उठो काम करो। नहीं मिली, उठो काम करो। कीप परफेक्टिंग योर क्राफ्ट, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बिकॉज you know what the fishermen do when they don't go to fish? They work on their net. They repair the nets. अगर आपको इस पॉडकास्ट में अगले 3 साल में 100 गेस्ट लाने हैं तो आपकी अप्रोच फनल में 1000 गेस्ट का नाम होना चाहिए जिनको आप अप्रोच कर चुके हो। जब तक एक गेस्ट या एक क्लाइंट आपको क्लाइंट नहीं बनता, वो क्या होता है, सस्पेक्ट होता है। फिर वो प्रॉस्पेक्ट बनता है जब उसको अप्रोच कर लेते हो। फिर आपने उसको अप्रोच कर लिया, मतलब ईमेल भेज दिया कि सर आ जाना आप, यहाँ जो भी आपका नाम है आ जाना, राइट। फिर एंड पे होता है नेगोशिएशन, अगर आप पेड गेस्ट ला रहे हो, फ्री ला रहे हो, या आपको पैसे दे रहे हैं एक्सेट्रा जो भी। फिर सी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द था मैं भूल चुका हूँ। इट्स बेसिकली SPANCO। C is costing, Okay. and O is I think operations or something, but take it live. I'll tell you exactly what it is because I don't want to give wrong information. It's a sales method basically, एक acronym है SPANCO, SPNCO। S का मतलब मैंने बता दिया आपको, सस्पेक्ट। जब आप दुनिया में किसी को जानते नहीं तो आपका सस्पेक्ट होता है वो। जब आप उसको जान गए, मेरे थ्रू आप किसी को जान गए तो प्रॉस्पेक्ट बन गया। A फॉर अप्रोच या फिर एनालिसिस, N फॉर नेगोशिएशन, C फॉर कंक्लूजन, एंड O फॉर ऑर्डर। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आपस समझाता हूँ आपको। तो स्पैंको फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, जब आप किसी भी इंसान को, जैसे कोई इंसान है, जैसे फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब आप जब किसी को एक फनल इमेजिन कर लो, बहुत सारे लोग आपके सस्पेक्ट हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट कौन बन सकता है पॉडकास्ट पे? हर इंसान आ सकता है। Any आ सकती है, छोटा बच्चा आ सकता है 5 साल का, 70 साल का इंसान आ सकता है, 15 साल का इंसान आ सकता है। सस्पेक्ट जब तक आप उसको जानते नहीं, प्रोस्पेक्ट जब आप उसको जान गए, ए जब आपने उसको अप्रोच कर लिया, एन उससे आप नेगोशिएट कर लिया, डील आपने जो भी डील है, सी आपने क्लोज कर लिया या फिर कॉस्टिंग, और ओ या फिर ऑर्डर की ऑर्डर आ गया या फिर आपकी पॉडकास्ट एग्जीक्यूट हो गई। सो इस पूरे मॉडल में ना आपने हर एक इंसान को अप्रोच ही किया है, अगर आप नोटिस करोगे तो। जो आया नहीं आया, क्योंकि आपका गोल था कि मुझे 100 गेस्ट लाने हैं अगले 1 साल के अंदर, तो आपका अप्रोच फनल हमेशा फुल होना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लिंक्डइन में आप कंटेंट बनाते जा रहे हो जॉब के लिए, या फिर जॉब पाने के लिए, या फिर जॉब देने के लिए, या फिर कुछ करने के लिए, या पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। कितने ब्रांड्स को अप्रोच किया आपने एज अ पर्सनल ब्रांड फॉर कोलैबोरेशंस बिफोर रिजेक्टिंग योरसेल्फ इन योर हेड?
कितने जॉब इंटरव्यूज आपने दे दिए बिफोर रिजेक्टिंग योरसेल्फ इन योर हेड? सैंपल साइज यूजुअली कम रखते हैं 10 जॉब इंटरव्यू से प्रणव बाहर हो गया तो प्रणव ने जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया, क्यों भाई? क्या आपने इक्वल एफर्ट मारा था 10 के 10 जॉब में? क्या आपने एक रात पहले रिसर्च किया था, 2 रात पहले रिसर्च किया था उस कंपनी के बारे में? क्या आप उस कंपनी के बारे में रेवेन्यू से लेकर, फाउंडर से लेकर, सर्विस से लेकर, प्रोडक्ट से लेकर हर कुछ जानते थे क्या? जो आपने अपने आप को मन में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपने पेपर अच्छे से नहीं किया था शायद। आधी जनता ये कर रही होती है ना। आप तो इर्द गिर्द घूमते हो ना अपने दोस्तों के अराउंड जो जॉब में हैं। आप तो फिर भी चलो आर्ट्स कर रहे हो, उसमें एक स्पेसिफिक जॉब बहुत बार नहीं मिल पाती, शायद आर्ट डायरेक्टर की मिल सकती है, एक कंटेंट क्रिएटर की भी मिल सकती है, बट एक बीबीए फाइनेंस वाले बच्चे को तो जॉब ही चाहिए, एमबीए फाइनेंस वाले बच्चे को। उसने अपने आप को रिजेक्ट ही कर दिया। सर 10 दरवाजे बंद। लोग अपने आप को ना बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं, भले वो कंटेंट क्रिएशन और लिंक्डइन हो, एक एक्टिंग करियर हो, या एक बॉलीवुड करियर हो, या एक म्यूजिशियन हो, या फिर एक फुटबॉलर, या फिर क्रिकेटर, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर कुछ भी हो। आपने कैसे अपने आप को रिजेक्ट कर दिया यार? द डे यू स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द डे यू फेल। सो that's the crux of the entire conversation that I'm trying to do with you, which is whatever it is, you have to not give up on yourself. मैंने जो बोला ना आपको कि जिस दिन आपने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया या अपने आप में बिलीव करना बंद कर दिया, उस दिन आप खत्म हो गया, उस दिन आप सब कुछ खत्म हो गया ना। आप डाउट में घुस गए बस एक, और डाउट बहुत बड़ी बुरी चीज़ होती है दोस्त, वहाँ से निकल नहीं पाते लोग। यहाँ पर सारे कैमरा लगे हैं, एक एक्टर आया, क्या मैं शॉट कर पाऊंगा? मैं आपको एक बहुत चीज़ बताता हूँ जो मैं करता हूँ। कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो आपके पेन पॉइंट्स होते होंगे, शायद मैं उसमें बेस्ट नहीं हूँ, बट मुझे बोला गया पढ़ाने के लिए, और दे वांटेड मी ओनली टू टीच। लास्ट ईयर की बात है, मैं गया, मैं हमेशा ये करता हूँ बहुत सारे सेशन में, बट इस सेशन में मैंने कुछ स्पेशल किया। मैं गया वो सेशन, आई वेंट टू द वॉशरूम, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई क्लैप फॉर माई सेल्फ बिफोर एवरी सेशन, whether the audience doesn't or do different thing. Majorly in offline sessions, I'm telling you. Mirror, I clap for myself and I tell myself, I am the best person on the entire planet to teach what I'm teaching today for this batch, for these students. Nobody else can do it better than me for them. मैं better हूँ या नहीं हूँ secondary है, but मैं मान के believe करके वही जाता हूँ हमेशा. And that's what I tell that I'm not a trainer. You are a teacher at heart. I am an entertainer. You will never feel bored in my lecture. If you feel bored, I will understand. I will change the premise. I agree. Right? And one more thing that my mentor told me, could be one more term that you can relate with, is since I'm consulting since the last 3-4 years, and I'm also influencing people at, he says you can use the word which is confluencer. I'm a consultant come influencer. Because my influence in real life is 10 times bigger than just a video. So that's the part of all that you asked and all that you did not ask. Yeah, a lot of things I did not ask. Yeah. So my friends tell this to me a lot. So I don't know. At that time I don't know what response should I give. It feels good though that if I'm telling them that I want to do this in next 2 or 3 months, I like do my initial preparation and I put that out. So like I want to start a podcast and this and that. So I recorded it. I had put it out. Like my first episode was very bad. I would never watch that episode, but it's still out there. But do you know the first episode of the first ball that Virat Kohli played? Was it good? Was it a 6? No, I don't know. 100% not. Nobody can. Fluke हो सकता है कि हो सका हो. Do you think the first song Arijit Singh sang was the best? No, it was so rejected so many times. One person you tell me who's done the best in the first go. Vaibhav Suryavanshi. वो तो फर्स्ट बॉल नहीं थी ना पर, बट इतने बड़े पैमाने पे आके खेलना, आई एग्री विद यू, सॉर्ट ऑफ आई वुड एग्री विद यू, बट फर्स्ट बॉल नहीं थी उसकी। हाँ, फर्स्ट बॉल में तो वो पहली बार देख रहा होगा ये है क्या, टाइम कैसे करना है, इसका वेट कैसा है, बैट कैसा है। सो एनीवेज, फर्स्ट टाइम ऑफ एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड ऑफ योर्स यू विल नेवर वॉच अगेन, बट यू शुड टू सी हाउ फार यू हैव कम। I mean, I sometimes watch it to see कि यार मतलब initially I was watching it कि मैं क्या better कर सकता हूँ. That is why I watched my previous episodes. ठीक है। So, but I have not removed it. I'm not ashamed of it. Fair. If it's cringy, then it's fine. It's okay. It was you in 2022 or 3. Fair enough. Yeah. And also one more thing I'll tell you which you have is
You don't give up. So I'll tell you, there are times that we have converted a lead after 18 months. There was a guy who I wanted to get on my podcast. I waited 1 year to get him. Yeah, you told his name. You mailed him. Michael and- Janda. Yeah. Right? Very amazing guy. See, with me, you've been equally persistent. कि सर अभी करते हैं क्या, आप हो क्या अवेलेबल? Because I was there in your list of people who wanted to do this with, and you didn't give up. As simple as that. The moment you give up, it's all zero then. साठेज स्टिकर है, अरे बढ़िया Sticker है. Cheers to Sates for giving us this amazing place to talk and record. extremely grateful. So you should always be I grateful. really think I'm the luckiest person on this planet. That's what you should think I every day. really feel so. I've got great parents. I've got great mom. I've got great dad. I was lucky. I just came to Mumbai. I was planning on shifting to Pune. My chachu was like, "You go to Bombay. What are you doing?" I came here. I was just roaming around in Prithvi Cafe, and then they were like, You got a "No, job. video editor." And I'm like, yeah. Then I got into Prithvi Theatre, and everything changed. I came to study psychology and economics. I dropped that particular subject and then took media marketing, and then I did triple majors, and I didn't do psychology. Media, and marketing, economics. and arts. So media marketing and social sciences. So because I want to make political content as well. So as in how Mohawk makes analysis and all. So you know the best part about this is, why did you get all of these opportunities? Because you were there. Half the world is I showed up. Half the world is घर पे बैठता हूँ मैं, आएगा एक दिन, भगवान आएगा. So you've heard that story? I'll tell you a very interesting story. So I'll tell you a very interesting story, okay? On camera I'll tell you. ये डाल दे, इतनी बहुत है. एक समुंदर में ना एक इंसान डूब रहा होता है. एक नौका जाती है, आ जाओ चलो, मैं छोड़ देता हूँ आपको कोने में, मर जाओगे आप. नहीं नहीं, तुम जाओ, भगवान आएंगे फिर जाऊँगा. फिर एक और बार एक टूटी सी नौका आती है, चल भाई वहाँ तक चल जाएगी, चलते हैं, मर जाएगा इसमें, भगवान आएंगे फिर जाऊँगा. तीसरी बार एक इंसान आ रहा है जिसको स्विमिंग आती है, उसको लेके जा सकता है साथ में पकड़ के, चल भाई, एक फ्लोट था उसके पास, नहीं नहीं आप जाओ, मैं भगवान के लिए वेट करूँगा. Eventually he had to die. ये इंसान कौन है जो बैठा है घर पे, जो कुछ नहीं कर रहा है, वेट कर रहा है अपॉर्चुनिटी. तो वो जाता है भगवान के पास, भगवान आप आए नहीं, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था. 3 बार आया तो था. I know this story. Right? Yeah, So yeah. घर पे बैठ के भी अपॉर्चुनिटी आती है, बट घर बैठ के अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम आती है ना, बाहर थोड़ी ज़्यादा निकल जाती है. एंड सेकंड थिंग टू सेड कि हाउ डू आई कंट्रोल माई एंगर. सो आई टेल यू, द रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉन्वर्सेशन और अ टास्क or anything that is not done according to your thought or your expectation becomes anger. You were expecting me to show up at 11 o'clock, I showed up at 12 o'clock. सर यार आपको पता था ना, मैंने कैफ़े थोड़ा कम मिलता है देर के लिए, प्लीज़ आप टाइम पे आ जाना. Right? You expected the person to edit the video in certain way, it did not go in that way. You can respond in 3 ways. A, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रख लेना, ये कोई बात नहीं, हमने 3 बार कर लिया, ठीक है, 3 बार बोल दिया, अब चौथी बार गलती हो गई. सेकंड, आज अब बैठ के तू सिखा देता हूँ वापस, मैं कैसे करता हूँ, तू ऐसे कर लेना, ट्रेनिंग दे दिया आपने. थर्ड, क्या यार तो कुछ आता ही नहीं करने के लिए, आपने उसको फीडबैक कैसे दिया, उसके पूरे 5-6 घंटे की एडिटिंग का फीडबैक, क्या बकवास एडिटिंग किया है. ऑलवेज इन गिविंग फीडबैक, अप्रिशिएट देन एजुकेट, डोंट रिएक्ट. You have to understand one thing which I understood in 10th standard when I was captaining my team in volleyball tournaments in states. 6 के 6 खिलाड़ी तरुण नहीं हो सकते ना भाई. You are expecting them to react and play the same way. It's okay. आपका strength smashing है, मेरा lifting है, उसका defense है, उसको वहाँ पे place करो ना जहाँ पे उसका strength है. So the moment you put the right people in the right place and keep them, the hardest part is hiring the right people, and the more hard part is, you know what? रिटेनिंग देम. अगर वो बंदा आपकी वजह से चले गया, आप बोलो यार क्या एक बार उसका कंट्रोल कर लेता यार. एंड बिफोर यू असाइन अ टास्क, आस्क पीपल, क्या आपको ये पता है कैसे करना, आप कर पाओगे, कुछ हेल्प चाहिए. पीपल फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज,
lack of experience, lack of confidence, lack of support और lack of confidence. तो जिस दिन आपने रिएक्शन बंद करके रिस्पॉन्ड कर दिया ना, आप जीत जाओगे लाइफ में. विराट कोहली पहले रिएक्ट ज़्यादा करते थे, अब रिस्पॉन्ड करते हैं बैट से और अपने मुंह से भी कर देते हैं. ऑन फील्ड आपके यहाँ 4 लोग जो काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट या किसी तीसरे इंसान टीम मेंबर के सामने भी उसको नीचा नहीं दिखा सकते आप. उसको बोलो अर्जुन भाई चल यार वहाँ चलते हैं कॉफ़ी पे चाय पे, बात करो उससे, क्या हो रहा है, सब ठीक है घर पे. आपको क्या बताओ कैसे मन से उठ के आया घर से, क्या लड़ाई हुई घर पे, आपने उसको मारा क्या आज, या नहीं भी मारा तो कुछ झगड़ा करके आया क्या, इसलिए काम नहीं कर पा रहा शायद. आपको तो पता ही नहीं, आपने तो जज कर लिया कि काम कितना बकवास किया, क्योंकि आपके लिए काम सब कुछ है. 3 दिन पहले मेरे को एक कलीग ने बोला कि 11 बजे बोला कि सर 4 बजे तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ. गलत बात है ना, 3-4 दिन पहले बोलना चाहिए था. नेक्स्ट टाइम जस्ट इन्फॉर्म मी इन एडवांस, बिकॉज अपने मम्मी की कोई काम से जा रही थी. एट तरुण स्पीक्स फैमिली, एट तरुण स्पीक्स रिमेंबर दिस, फैमिली फर्स्ट, वर्क सेकंड, कॉमा ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क, इनवर्टेड कॉमा क्लोज. कल एक बंदे ने बोला सर सॉरी मैं आपको दे नहीं पाया लैंडिंग पेज आपकी नई बैच का, रोड मैप डिजिटल मार्केटिंग का, और सर वो मेरे घर वाले में किसी को, सर मुझे मेरा ब्लड मैच तो मुझे ब्लड डोनेट करने जाना पड़ा, तो थोड़ा एनर्जी डाउन है. 1:30 बजे उसने वॉइस नोट भेजा मेरे को. बोला यार पागल है क्या तू भाई. एट तरुण स्पीक्स फैमिली फर्स्ट, वर्क सेकंड, ऑलवेज. So one thing is responding instead of reacting, looking for solutions instead of focusing on problems. We are aware of that. Try to have a conversation, because what a lot of people do is they don't listen. So They what want to if speak. even if I'm trying but I'm failing at it? What should I do? Because then? you want to be heard, na? You are the boss. You want to be heard. You don't want to listen. सर वो एक सर ठीक है सर आप बोल लो सर, आप बोलो सर मेरी गलती सर आप बोलो. वो गिव अप कर देगा ना फिर कि ये इंसान ऐसे ही करता है. और ये 4 लोग और देख रहे हैं, ये 4 लोग कभी रेकमेंड ही नहीं करेंगे नए इंसान को ज्वाइन करने के लिए. कल्चर ही आपने सब बिल्ड कर दिया ना. एक बार एक कलीग ने मेरे को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला दिया था 15 लोगों के सामने, मैंने भी चिल्ला दिया उसके ऊपर. मैंने उसको बोला के बात सुनो, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए. 15 लोगों के सामने आपकी इज्जत है, मेरी भी इक्वली है, किसी की कम ज़्यादा नहीं है. रिस्पेक्ट दोनों साइड से इक्वल होता है. आप लेट आए थे, आपकी गलती थी, एक्सेप्ट एंड ओन इट. डोंट मेक मी रिएक्ट द वे आई डोंट वांट टू रिएक्ट. I apologize to him also because I don't want to put up a show wherein I am telling you, you are KL Rahul, I am XYZ. क्यों करूं मैं दुनिया के सामने ऐसा, क्यों? मैं आपको कैबिन में डाल के बोल सकता हूँ यार प्रणव यार सही नहीं खेल पाया उस दिन, सही करना चाहिए था, सही करना चाहिए, ये करना चाहिए. Always remember this one line: applaud in public, preach and advise in private. थप्पड़ हमेशा सबके सामने जब पड़ता है ना तो बेइज्जती बहुत सबके सामने हो जाती है, तो वो इंसान उठ नहीं पाता फिर उस चीज से. कोने में जाके करोगे ना आप. This reminded me of a very great example. You know Mohamed Salah, right? हाँ. And you know Sadio Mane? फुटबॉल पे रहना Yeah, बहुत yeah, सारा. yeah, yeah. हाँ. You know Sadio Mane? So Sadio Mane is an African player. So Sadio Mane and Mohamed Salah played for Liverpool for at least 4-5 years, as much as I remember. So since I started watching football, I've seen them play together in Liverpool, and the way their partnership was on the pitch. One is passing, one is scoring goal. It's same way. Cross दे रहे हो, Yeah. ऐसे ही चल रहा था. And they are celebrating like crazy. No one can believe. Everyone would think there's a bromance. Everyone will think कि भाई क्या भाई जोड़ी ये दोनों है. बहुत अच्छे दोस्त हैं. सचिन विराट. Oh, सचिन वीरू. No, not Sachin Viru. I'll say Kohli and AB de Villiers. अच्छा वैसी टाइप की ब्रोमैंस. हाँ ओके गुड ड्राइव. हाँ वो है. And then after a point Sadio Mane leaves Liverpool, joins a Saudi Arab का team, and then there's a book released on Sadio Mane's life where he mentions me and Salah were never friends. We were never friends. We were just colleagues. and it's okay right, it's okay right, because even according to Venkatesh Iyer in that flight journey from Indore to Bombay, he said that I'm not friends with everybody who's into cricket. Only very few people I'm friends with. आप लोग 11 लोग मिले, टास्क था IPL जीतना है, इंडिया के लिए मैच जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, आपका KPI KRA सब वही था ना, खेल के आप निकल गए.
जरूरी थोड़ी हर इंसान का दोस्त बनना है आपको, जरूरी थोड़ी होता है आपको ऑन फील्ड ये दिखाना कि लाइक यू सेड राइट कि ऑन फील्ड तो आप बहुत अच्छे दोस्त थे, ऑफ द फील्ड आप जो भी करें आपके ऊपर. सो ऑन फील्ड आई एम वन टीम. एंड व्हेन 2014 Dhoni stepped down and Virat Kohli entered the captaincy of Test, we were at 6th position to being consistently won for many years, because I told you that we are not playing for a draw, we are playing for a win. The next 60 overs you should feel like hell out there is the mindset you have to build. आपके पास रन 100 बोर्ड पे, हम जीत सकते हैं ये होता है because रोहित शर्मा भी यही बोलते हैं कि the match or the game of life or cricket is not over until the last run is scored or the last ball is bowled. So coming back to the main point, आपको react करना है. Count till 10, fist tight कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बोलोगे उस सिचुएशन में, भले वो गुस्सा हो कलीग के ऊपर या फिर एक इंसान के ऊपर. सुनो, सुन के ना सब कुछ सॉल्व हो जाता है. ज्यादातर आर्ग्यूमेंट, ज्यादातर डिसएग्रीमेंट्स बिना सुने ही होते हैं. मैं आया आपके पास, आप कैप्टन है टीम के, प्रणव यार वहां मेरे को थर्ड मैन पे बंदा चाहिए. छोड़ा, तेरे को क्या पता, फाइनल लेग पे लगाऊंगा मैं. अरे प्रणव मैं ऑफ में डालने वाला हूँ, थर्ड मैन पे चाहिए मेरे को, राइट ही बैट्समैन है. अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बॉलर मैं हूँ प्रणव, कैप्टन मैं हूँ ना. तो बी अ लीडर, नॉट अ बॉस. So how do I become a great leader? Read about more leaders. 1. Second, lead by example. Third, listen. I was a very amazing Asia level CEO of a very big mobile tech company. He used to do a 1-to-1, 1 hour every week with 4-5 people, random category of the organization, just to tell them कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में. Be in that position of that person. जब आपने पहला एपिसोड रिकॉर्ड करा था, जब आपने पहला एपिसोड रिकॉर्ड करा था तो आपको कैसा लग रहा था, जब आपने पहली बार वीडियो एडिट करा था तो आपको कैसा लग रहा था, जब आपने पहली बार पिच डेक बना था तो आपको कैसा लग रहा था, वैसे ही उसको लग रहा होगा ना आज. नर्वसनेस उसको इतनी हो रही होगी ना, उसको भी तो किसी के सामने प्रूव करना ना कि मैं अच्छा हूँ ताकि मैं फुल टाइम जॉब में ले लूँ, मैं मैनेजर बन जाऊँ या फिर मैं एक इक्विटी पार्टनर बन जाऊँ. अपने आप को उसके जूते में डाल के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो, क्योंकि लीडरशिप इज नथिंग about bigger numbers, bigger bills. It's only about one thing: people management. Human management should be the highest paid job in the universe. सबसे ज़्यादा गाली उनको मिलती है लेकिन ह्यूमन मैनेजर्स को. You have to manage human beings. 2 people are great performers. You promoted this guy. Sad हो गया ना. सब आए, गुस्सा भी आएगा, छोड़ के भी जाएगा, झगड़े भी होंगे. या फिर बस 2-3 महीने रुक जा, I'll get something for you because this is what I have for you, and take it in writing. So be a good leader by leading by example, talking to more leaders and talking to people who you want to become like. Do you want to become like an Elon Musk? Fetch him, talk to him. You know that 5 chain of 5 method? आप किसी से भी बात कर सकते हो इस दुनिया में. आपको प्रियंका चोपड़ा से बात करना है, आपका कोई दोस्त है इंडस्ट्री में जो उसको जानता है, किसको, उसके मैनेजर को, उसका मैनेजर जानता है उसको, एक लेयर, दूसरा लेयर उसका मैनेजर, तीसरा लेयर प्रियंका चोपड़ा का मैनेजर, चौथा लेयर प्रियंका चोपड़ा. हो गई ना बात. किसी से भी बात कर सकते हो आप, कोई भी इंसान से यूनिवर्स के अंदर. आपको रोनाल्डो से बात करनी है, आपका कुछ लॉजिकल होना भी चाहिए बात करने के लिए. सेम चीज़ अप्लाई कर दो. कोई फुटबॉल का पागल होगा यहाँ पर इंडिया में, स्पोर्ट्स मैनेजर होगा यहाँ, फिर जो वहाँ पे उसका टीम मैनेज कर रहा होगा, वाया कोई कनेक्शन निकल जाएगा. 5 लेयर्स के अंदर मिल जाता है कनेक्शन. और जब आप एक नए इंसान से मिलते हो तो आप बहुत सारे कनेक्शंस अनलॉक कर देते हो ना, कि अरे तरुण भाई मैंने देखा था यार आप कनेक्टेड हो यार उनसे, वो अक्षय गुरनानी, आई ट्रीट हिम एज माय मेंटर आल्सो, अमेजिंग गाय, कैन यू रिक्वेस्ट हिम टू दैट ही स्पीक टू मी, आई वांट टू इनवाइट हिम फॉर माय पॉडकास्ट. आपके पास एक्सेस नहीं था, मेरे थ्रू आ गया एक्सेस. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्पीक टू मोर लीडर्स, स्पीक टू पीपल यू वांट टू बिकम लाइक, स्पीक टू, listen more than speaking, and observe how they do this, how they don't react and respond, because life would be so much simpler if everybody would respond and not react. Coffee example you already have, right? और एक चीज याद रखना, आप ना अच्छा बोल के किसी से कुछ भी करवा सकते हो.
गंदी तरीके से बात करके, बुरा बोल के, उसको नीचे दिखा के कुछ नहीं करा सकते। आपने एडिट किया, मैंने बोला क्या बकवास एडिटिंग की है यार प्रणव, तो एडिट करता है क्या? प्रणव यार वीडियो बेहतर एडिट कर सकता है यार तू, मतलब तेरे से एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ये थी, इस टाइप का वीडियो था, ये टाइप के सबटाइटल्स थे, ये टाइप का फॉन्ट चॉइसेस था। ये तुझे मैंने बताया था पहले, शायद तू भूल गया। हाँ यार उस दिन मैं शायद किसी और चीज़ में था। ऐसे कर ले यार, अच्छा हो जाएगा। ठीक है बढ़िया, प्रणव का फीडबैक हो गया 1 सेकंड में खत्म। 1 मिनट में फीडबैक खत्म हो गया, वर्सेस 15 मिनट तक प्रणव को चिल्ला रहा हूँ, मेरी एनर्जी भी जा रही है, उसकी भी जा रही है, क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोटेक्शन। पीपल मैनेजमेंट के अलावा खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए आपको। एक ऑरा होता है आपका जो आपको मेंटेन और प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग उसका खराब करेंगे। So next time you can do this. So right now I'm not posting anything on LinkedIn, but I have my profile, I have my photo, I have mentioned what I do and all of that. My about section is also written, which needs a little bit update. Considering what I do right now, I'll tell you. So podcasting, video editing, production services. On initial level we are, but yes, production services. And little bit about history, let's say. Okay, so these are the 3-4 things that we do, I do, and also what my team does. Okay, how do I put it out as a content on LinkedIn which helps me gain more traction or get me more eyeballs, or maybe get you more in future business. more businesses, or maybe get me more clients, etc. Focus. Avoid the social history part of this. Okay. Talk about it in a blog somewhere else. Focus on production, podcasting, and editing, because all three are interconnected. Yeah. Talk about that. Give examples. So social proof कि हम लोग ऐसे पॉडकास्ट शूट करते हैं, ऐसे एडिट करते हैं, ऐसे गेस्ट लाइन अप करते हैं. And I can do the same for you. In the headline, you have to start claiming, if I shoot your first episode and if you don't like it, 12 cupcakes on me or 12 episodes on me. Have the balls to be able to claim that, because when you claim it, or have the guts to be able to claim it, because when you claim this, आपका पहले एपिसोड में शूट करूंगा, अगर आपको एडिटिंग प्रॉपर शूट सब कुछ पसंद नहीं आया, जो आपका इन्वेस्टमेंट है 6 घंटे का प्लस 8-10 घंटा रिसर्च, तो आपके 12 एपिसोड्स मेरे ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा क्लेम कोई कर रहा है तो अच्छा ही करता होगा कुछ, मैं बिलीव करूंगा उस पर, और मैं इंडेट हो जाऊंगा कि यार आपका काम करना ही पड़ेगा. और अगर 12 के बाद भी मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा था पहले दिन से, आप समझ नहीं पाए, मैंने आपसे काम निकलवा लिया. उतना स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, वो काम करते करते आएगा. तो प्रूफ दिखाओ, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया प्रूफ पे चलती है. कोर्स ज्वाइन करना है, प्रूफ दिखाओ कि प्रणव आया, प्रणव को जॉब मिला. रवि आया, रवि ICICI बैंक में गया, रवि अभी एडफर्टाइज PR में है, 70,000 रुपये की जॉब कर रहा होगा रोड मैप करने के बाद. फनील शाह कोर्स करने के बावजूद डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, फिर भी तरुण स्पीक्स के पास आया, कोर्स किया, आज वो WRM में जॉब कर रहा है. कृष्णा कुमार 60-year-old एंटरप्रेन्योर फ्रॉम भुवनेश्वर, अपनी एजेंसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा है, उसको सारी टर्मिनोलॉजी हमने सिखा दी है डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है. प्रूफ दिखाओगे ना तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे. दूसरी बात, लोगों को बोलो आपके बारे में बात ज़्यादा करें वर्सेस यू योरसेल्फ. For example, मैं आया, मैंने आपके बारे में बात करी है, प्रणव ऐसे प्रोडक्शन करता है, टेस्टिमोनियल ले लो लोगों से. जितना मैं बात करूंगा उतना लोग मुझे ज़्यादा बिलीव करेंगे, क्योंकि मैं प्रणव नहीं हूँ ना. अपनी तारीफ तो सब इंसान करते हैं, कोई दूसरे से करवाओ ना, राइट? big example, शाहरुख खान. लोग ही डजंट टेल कि मैं बहुत अमेजिंग आदमी हूँ. उनका विट ही बहुत स्ट्रांग है वो बताने के लिए, उनकी एक्टिंग ही बहुत स्ट्रांग है वो बताने के लिए. सो सोशल प्रूफ, टेक मोर पीपल टू टॉक अबाउट इट, एंड 3, come across as a very intellectual human being. Sarthak Ahuja. I will go here. I have 0 production value. एक बड़ी सी गोडॉक्स की लाइट होती है, कैमरा इधर है, मेरा डेप्थ कंटेंट में बहुत ज़्यादा है. इतना डेप्थ मेरे कंटेंट में कि यार प्रणव को सुनना ही सार्थक अहूजा क्या बोल रहा है. It's like Bill Gates talking to you. You want to listen to it. Bill Gates start playing pickleball. World is playing pickleball. Yes. Show proof. Be intellectual. Don't be just a good guy on the internet. There are plenty of good guys. प्रणव सिर्फ पॉडकास्टिंग और प्रोडक्शन के बारे में बात करता है. सिर्फ 2 types of podcasts you can do, guys. 1 without production, 1 with production. One more
thing you can do. DM to the creators that you want to work with. आपका वीडियो था, मैंने एडिट करके आपको दे दिया, ये लो, एडिट करवाओ मत. जब वो बोले ना कि हाँ चलेगा भेज दे एक वीडियो, कोई मना नहीं करता फ्री कंटेंट के लिए. आपने बोला अपनी टीम को, आपने खुद ने मेहनत करी, ऐसा एडिट मारा उस वीडियो को, बोले यार ये तो भाई क्या जादू ही हो गया, वीडियो अलग हो गया मेरा. नहीं, आपके पास टाइम, कैप्शंस वाली ऐप खरीद लो, प्रो खरीद लो, सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये महीने का है, उससे एडिट करा दो, उसको प्रॉम्प्ट अच्छा दे दो. अब उस पूरे प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो पता है, एक सैंपल दे रहे हो मुझे, ताकि मैं अट्रैक्ट हो जाऊँगा. प्रणव क्या पॉडकास्ट कर लेता हूँ यार मैं, मेरा कंटेंट तो वैसे ही बोरिंग चल रहा है. Basically, you have to build trust ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहे through हो your आप. proof. आप प्रूफ तो आपने दिखा दिया, सोशल प्रूफ कर दिया, टेस्ट. अब आप मिलके काम कर दिया आपने बिना कोई एक्सपेक्टेशन के. कॉफी दी मैंने आपको, आप ना पियो आपके ऊपर, मैंने वीडियो डाल दिया, आप यूज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे बहुत एडिटर्स ने मुझे डीएम करके वीडियो भेज दिया है मेरा एडिट करके खुद ही. तो आप ऐसा एडिट मारो जो कभी नहीं कर सकता हो, क्योंकि आपको पता है एडिट के बाद व्यूज थोड़े बढ़ेंगे यार, क्योंकि कट्स चाहिए, सीन्स It's चाहिए. engaging, yes. ये आपको करना है लिंक्डइन के ऊपर. और उसके अलावा जितना हो सके, जहाँ हो सके, अपनी ब्रांड पहन के जाना चाहिए लाइफ में. यहाँ अपना लोगो लगा दो, पीछे एक QR कोड लगा दो, स्कैन फॉर डैश. Great idea. नहीं डैश खत्म. तभी तो लोग स्कैन करेंगे ना. क्या करना, क्या पीछे क्या QR कोड है, UPI है, क्या है. एक बंदे ने कोई एक IPL की टीम के लिए ना एक QR कोड डाला कि मैं फंड्स इकट्ठे कर रहा हूँ, उसको एक दिन में 11,000 रुपये लोगों ने भेज दिए. RCB थी. RCB के लिए शायद कुछ तो था, गुड लक के लिए वो बंदे ने पूरे डोनेट कर दिए जो भी किया. आप लोगों को बोलो करने के लिए, लोग करेंगे. आधे लोग बोलते ही नहीं है. आपने मुझे वीडियो करके भेजा आज तक, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो जैसे आपकी वीडियोस ऐसे होते हैं, मैं ऐसे कर सकता हूँ. आपके पास तो मैं हूँ भी कनेक्शन में, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, लिंक्डइन में चलो ठीक है मैं रिस्पॉन्ड ना करूँ, दिस इज व्हाट यू कैन डू. Yeah. इट विल वर्क. And one more advice I'll give you: try to target people who are not from India. They're better Higher pay. paymasters. Yeah. They'll always pay you on time. They'll respect you more than Indians. Don't target NRIs outside India then. This QR thing. So outside NMIMS. So whenever there are festivals going on, someone what did they do? Printed a QR and wrote, रोशनी तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया. हाँ ये और फिर जब वो QR खुल रहा है, देखो रोशनी ने मेरे साथ क्या किया, and then when they are opening, it's advertisement for the festival. And then I'm like, bro, crazy ideas. You have this idea, right? You have this idea. Yeah. Did you implement it? No. So to promote this podcast, I'll give you an example. Take a plane, normal plane, keep throwing it at different scenes. प्लेन जा रहा है, फिर प्लेन आके यहाँ पे लैंड हो गया इस चेयर पे, फिर मैं आ गया चेयर पे, मैजिकली मैं से बैठ गया आके. दिस कुड बी अ प्रीव्यू ऑफ द पॉडकास्ट. लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं. दूसरी चीज़, अगर आपको प्लेन नहीं है एक्सेस तो TT बॉल ले लो, यहाँ से वहाँ बॉल बाउंस हो रही. पीपल वांट टू सी सस्पेंस, एंड में क्या हो रहा है. पहला वीडियो में दिखाना ही मत एंड में कौन आया, लाइक हाउ निखिल कामत डिड, राइट. सिर्फ बातें थी और आवाज़ थी मोदी जी की, बस. Same Rajkumari did for Khan sir. हाँ, इंस्पिरेशन ली ना, आप भी लो ना फिर. सी मेरी आवाज़ इतनी जानी मानी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि जो आइडियाज आपके पास हैं उसको इम्प्लीमेंट करो. आप इम्प्लीमेंट करो उसको, राइट. एंड जितना हो सकता है उस वीडियो को तोड़ के रील्स शॉर्ट्स पे वायरल कर दो. आप करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग. क्रिएशन इज ओनली वन पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्रिएट वंस, डिस्ट्रीब्यूट 100 times. Should one do re-uploads? 500%. So I uploaded one reel about, let's example. say, हाँ. कोई भी रील आप डाल दो. I'm just cutting your question, I'll tell you why. ये देखा हो किस लोगों ने देखा, उस दिन के 500, 1000, 3000, 10 लाख लोगों ने देखा. वापस हमने डाल दिया, नए लोग देख रहे हैं इस बार. मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे ना सेम चीज़ डाल चुका हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पे लाखों बार. हर बार अलग रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को. ओ ब्रो, व्हेन डिड यू मीट अंकुर वारिको? हाउ वाज इट मीटिंग हिम? लोगों को पता ही नहीं मुझसे मिला. लोग भूल जाते हैं. इतना कंटेंट. I also forgot. I just got reminded. Yeah. इतना कंटेंट है मेरे पास. I met Piyush Mishra. I met this guy Angad Bedi. I met Venkatesh Iyer. I met Jassul, that creator who's the fun guy. Jassul is the best creator, the most funny guy. You see his videos. And I asked them all one question. You know what was that? What is that one thing that you want to advise to everybody who's watching this content and who's my student? Everybody said only one thing.
एडवाइस क्या है? काम करो, बस काम करो, काम करो, बस काम करते रहो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। सो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये पूरा, क्योंकि ये मैं कितनी बार भी डालूंगा ना, लोग भूलेंगे, नए लोग देखेंगे, क्योंकि 2 साल पहले फॉलोअर्स अलग थे, अब नए जुड़ गए, हर रोज नए जुड़ रहे हैं। आज भी इंसान कोई रणवीर अलाहाबादी को डिस्कवर कर रहा होगा, राज शमानी को डिस्कवर कर रहा होगा, तरुण स्पीक्स को डिस्कवर कर रहा होगा, तो हर रोज नया ऑडियंस मिल रहा है ना। आपके पास तो 600 सब्सक्राइबर है, नथिंग टू लूज, 500 बार डाल दो सेम चीज, तोड़ के 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, 500 दिन बाद, 150 दिन बाद। अपने कंटेंट को रीपर्पस हमेशा करना चाहिए। अगर नया शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, कंटेंट रोज आना चाहिए आपका। So, I mean, I understood how one needs to grow through LinkedIn, right? But it is very different on Instagram. I mean, what different should one do if I'm posting content both on LinkedIn and Instagram? How do I present my uh, niche on Instagram, which is different from LinkedIn? I'll give you one idea for yourself. Okay. Take every creator that you like, every individual that you like, every entrepreneur that you want to work with, edit their videos and post it on your Instagram. Edit their videos. As an शुरुआत कैसे होगी वीडियो की? हाय, मैं हूँ प्रणव और हम एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है Small Man Productions. स्मॉल मैन प्रोडक्शंस। ठीक है, आज हम वीडियो एडिट करेंगे ABC बंदे का। देखते हैं, ये है वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस, 10 सेकंड दिखा दी टाइम लैप्स में, और ये रहा वीडियो। आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे लोग कि उसकी, तो व्यूज़ भी आ जाएंगे, शेयर भी मिल जाएंगे, अच्छी बात कोई बोल रहा होगा तो। या फिर कोई इंसान भी आ जाएगा, यार अच्छा वीडियो एडिट किया आपने यार, वो उस दिन यार वो CEO का मेरा भी कर दो यार। और आप उसके लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हो जिसको आपको टारगेट करना है, इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, VC, CEOs। आप सबसे 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने की चार्ज करो ना, उनके सारे वीडियो एडिट कर दो आप, एक दिन उनसे शूट कराओ सिर्फ, उनका टाइम ही उतना होता है, क्योंकि पूरा महीना चलाओ उनके लिए आप कंटेंट। आप अगर एक रैंडम क्रिएटर के लिए वीडियो एडिट कर रहे हो ना, जिसके 5,000 फॉलोअर्स हैं, पैसे नहीं दे पाएगा ना आपको उतने। साल का रेंट कैसे निकलेगा, ये प्रोडक्शन टीम कैसे निकलेगी, सब कैसे आएगा, ये सब कॉफी कैसे मिलेगी, इंटरव्यूज कैसे मिलेंगे, नया कैमरा कैसे आएगा, नया गियर कैसे आएगा, सब कुछ कैसे होगा ये। आप टारगेट उनको करो जो आपको अपने क्लाइंट्स को बनाना है, एज सिंपल एज दैट। एंड एक चैलेंज दे दो अपने आप को, एक वीडियो डाल देना। अगर कुछ भी नहीं चल रहा हो ना, 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं चल रहा है, तो मैं बहुत टाइम से एडिटिंग कर रहा हूँ, 3 साल हो गए, अब मैंने एक वो लिया है, एक प्रण कि हम लोग ना, आप सभी चुनिंदा लोगों में से 3 एंटरप्रेन्योर्स को चुनेंगे जिनके पास समय नहीं है वीडियो एडिटिंग करने का। हम उनके लिए पूरा का पूरा 30 दिन नॉन स्टॉप वीडियो एडिट करेंगे हमारे कॉस्ट के ऊपर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को जानते हैं या आप खुद एक हैं जिसका रेवेन्यू इतना चल रहा होगा, बिकॉज आपने क्वालिफाई कर दिया लीड को, तो हमारा फॉर्म भर दें। गूगल फॉर्म में बहुत सिंपल है, 10 मिनट का काम है, 10 सेकंड का काम है। बाद में मिलते हैं, शुक्रिया। दिस इज द स्मॉल मैन शो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब आपने 3 लोगों के साथ काम कर लिया, कुछ भी नहीं मिला, उनको बोल देना सर एक रिक्वेस्ट है, बस 1 महीने फ्री में काम करने का, काम पसंद नहीं आया ना, पसंद आए जो भी, एक सर रिव्यू दे देना हमको, बस टेस्टिमोनियल दे देना आपकी तरफ से। फिर जब बैंडविड्थ फुल होने वाली हो, आपके पास 5 क्लाइंट हैंडल करने की कैपेसिटी थी, 3 तो फ्री में कर रहे हो, 1 आया, 2 आए, तीसरा आया, तो तीनों में से फ्री वाले में से एक को बोल दो सर अब नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा एक चार्ज है जो मुझे दूसरे लोग दे पा रहे हैं, आप दे पाएंगे तो मैं कर देता हूँ आपके लिए। ये लोग आप काम से खुश थे, ये आपको क्लाइंट्स भी ला के देंगे, शायद टेस्टिमोनियल तो दे ही देंगे। तो अब 3 फ्री से आपके पास 2 पेड हो गए, 3 फ्री हैं, 3 पेड, 2 फ्री हैं, 4 पेड, 1 फ्री है, 5 पेड, 0 फ्री। साल लगेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। And always have your goals written somewhere, in back of your room, back of your door, front of your mirror. लिख दो ना पर, the small man production has to cross a revenue of 1.8 crores in 2025-2026 new year, financial year, sorry. 8 करोड़, 1.8 करोड़, ब्रेक डाउन कर लो कैसे, कहाँ से क्या निकलेगा, शो से कितना निकल सकता है, प्रोडक्शन से कितना निकल सकता है, एडिटिंग से कितना निकल सकता है। गोल बनाओ, तोड़ो महीनों में, तोड़ो क्वार्टर्स में, तोड़ो महीनों में, तोड़ो वीक्स में, तोड़ो दिन में, तोड़ो
आवर्स में तोड़ो मिनट में. So whatever salaries that I get paid, I use that to delegate edit work to Very different good. editors. कल It मैं एक saves बहुत my time. अच्छे It helps me meet more clients, meet more people to log deals. and कल all. मैं एक बहुत अच्छे दोस्त से मिला जो हाँ. क्रिएटर है बहुत अच्छा एक फाइनेंस का. उसकी टीम में उसने बोला 4 एडिटर्स हैं, 4. जो एडिटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट. Hmm. सिर्फ कोर टीम में 4 एडिटर्स है, बाकी कुछ और लोग भी हैं. हमारे भी चाह रहे हैं. चारों की अगर सैलरी आपको लाख रुपए बचानी है महीने की, तो आपको कितने पैसे जनरेट करने पड़ेंगे महीने के एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए कंपनी? 10 लाख तो कम से कम करने पड़ेंगे, ताकि 4 लाख वो लेके जाए, आप भी कुछ लेके जाओ घर, और कुछ कंपनी में रहेगा, कुछ वापस घूमता रहेगा, कुछ प्रोडक्शन में लगेगा, कुछ शूट में लगेगा, कुछ लोकेशन में लगेगा. कहाँ से आएंगे वो आपको फिगर आउट करना है, कैसे आएंगे वो आपको फिगर आउट करना है. बहुत लोगों को पॉडकास्ट चालू करना है, बहुत लोगों को, But you know, क्योंकि सबको पॉडकास्ट चालू करके पर्सनल ब्रांड बनना है, ऑथर बनना है. तो आप करो ना, उनको चालू करने दो ना, मौका दो ना उनको. आप ज़्यादा लोग ही वो है जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, या फिर कुछ यंग भी है. यंग मतलब बस पैसा नहीं है इतना, आपको पैसा ले लो चाहिए. the last question and then, well, not question as in it's the last segment. Is there a question that you have for me? Question that I have for you is what is your end goal or dream in life? Like, you've lived life for 100 years. What should have you achieved or would you want to achieve by the end of it? Don't give me a philosophical answer. That that I'm happy that I made certain kind of films and I had posted a lot of documentary films of various other places which people should have always known. I mean, I created content that I really liked, that I really felt that people should know about. Okay. And Interesting. films ki, So, content is your core, films, short form, whatever. yeah. What content is what you have to decide. That is what is missing in your team right now. Documentaries is one type. So you can define those types. Because when you have clarity on what you want to do, reaching here becomes easy. When you want to create content, you're constantly creating different types of content. एक आधी शायद हिट हो जाए. डॉक्यूमेंट्री तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन जाओ आप. डॉक्यूमेंट्री नहीं तो फिर धमाका मसाला, या फिर एजुकेशनल, या फिर एंटरटेनमेंट. हर इंसान जब सब कुछ करता है तो आप उसको बिलीव करना छोड़ देते हैं. एक्टर के केस में अलग है क्योंकि वो किरदार निभा रहा है. Thank you for this conversation. You're always welcome. Keep dreaming, keep creating, because you were born to create. And last but not the least, you know what to do. Wherever you go, whoever you meet, whenever you can, don't forget to smile and spread a smile. Yeah. Thank you so much for having me. It has been a pleasure. Same here. Thank you. Thank you You're so very much. welcome. This is a small gift for you and the team. Oh. What is this? It is something that you can put in your room, something you can put wherever you want. Because it says, whether you want to, whether you don't want to, it says wait for it or make it happen. The choice is always going to be yours. So when you Thank you. came Thank to you the so studio, much. the Thank choice that you. you made was you made it happen. And I'll show you one more thing. This is for you and your entire team. Yeah, I remember this. I had put it on this one, but You can give it to the cafe people also. yeah. And I'll give you a couple of more so if you can want to give to Smile some and people. spread smile. There you go. Thank you so You're much. always welcome. Thank you so much. Put it at place that you feel you can see every day. Yeah. And you have to In front of choose. You have to choose this, okay, not this. You have to make it happen, not wait. Make it happen. Always. Thank you. You're you. welcome. ये देख लो भाई. Guys.